Assalamu alaikum. In this part of the video, I'm going to describe you the most important topic of the O-level syllabus, which is mensuration. Mensuration is the detailed topic. इसके में आपको आज सिर्फ सर्कल और उसके इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा कि सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से उसका सेक्टर का एरिया मालूम करते हैं, किस तरह से पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे इस टॉपिक में, mensuration में। अच्छा जी, सर्कल। Let's draw a circle. This is the circle with center O. Okay. Now the outer boundary of a circle, is said to be circumference, which is equals to 2 pi r. Now what is pi and what is r? Pi is the ratio of circumference. Pi is the ratio of circumference and diameter. Pi is the ratio of circumference and diameter, and it is the constant value. It will always remain same for any circle. Okay, it's a constant value which is equal to 3.142 and so on, 3.1415 and so on. Okay, now pi is an irrational number. This is about the pi. Pi क्या होता है? Then what is radius? What is radius? R for radius. What is radius? Radius is the distance from the center to the boundary of a circle. The distance from the center to the boundary of a circle is said to be radius, and radius is remain same for the whole circle. What is diameter? What is diameter? Question में diameter भी mention है, बाकी circumference के बारे में मैंने बता दिया, it's the outer boundary. What is diameter? Diameter is the line which divide the shape into two equal parts, or we may say that the chord which passing from the center is said to be diameter. This line is said to be diameter, or we may say that the double of the radius is said to be diameter. The formula of diameter is 2r. अगर diameter find out करना है और r मालूम कर लिया आपने तो उसको double कर दो, it will be the diameter. Okay, this is about the circumference, radius and diameter. What about the area? Area of circle. Area of circle is equals to pi r square. Pi के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और r के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Can anyone tell me what is chord? Chord is the line. स्केल यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा सफाई से काम कर लें. Chord is the line which touches the circumference but does not passes from the center. That line is said to be chord. Okay. Now what is tangent line? Tangent line. What is tangent line? Tangent line is the line which touches the circumference but does not passes from which touches the circumference at any one point. Tangent line is the line which touches the boundary at any one point. That line is said to be tangent line. और जिस point पे touch कर रही है, that point is said to be tangent point. This point is said to be tangent point, or the line is said to be line of tangent line. ओके, तो ये तो था हमारे पास कुछ सर्किल के बारे में बेसिक चीज़ें. अब आगे चलते हैं, सर्किल के बारे में और डिटेल चीज़ें पढ़ते हैं. अच्छा जी, लेट्स मेक अनदर सर्किल. ओवल बन गया, सर्किल बन जा भाई. लेट्स ट्राई अगेन. नाउ इट्स अ सर्किल. अच्छा जी, सर्किल. नाउ व्हाट इज आर्क लेंथ? फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. This is the radius of the circle. This is the radius of the circle. This is center O, for example. Acha ji. The radius, this one is radius, this one is radius. Okay. So the sum part, this is theta, an angle, and the part which I am going to shed, the boundary of some part of the boundary of a circle, that is called arc length. That is called minor arc length.
देन आई विल लेट यू नो कि माइनर आर्क लेंथ क्यों कहते हैं और मेजर आर्क लेंथ। और जो रिमेनिंग रेड लाइन है जिसको मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ, दैट आउटर बाउंड्री is said to be, this is the major arc length. Now what is the difference between minor and major arc length? Minor arc length, for example, if theta is lesser than 180 degree, if theta is lesser than 180 degree, then the arc length is said to be minor arc length. If theta is greater than 180 and lesser than 360, then the arc length is said to be major arc length. अगर ये theta है तो the rest of the angle is 360 minus theta. Okay, so minor arc length and major arc length. The formula for finding out the arc length, either it's minor or major, is 360 upon 2 pi r. Why 2 pi r? Because the arc length is the part of the circumference. क्योंकि arc length जो है वो circumference का part है, that is why there will be 2 pi r. ठीक है, यहाँ पे 2 pi r आएगा. अच्छा, थीटा, what is थीटा? अगर माइनर बोलेगा तो थीटा अपने 180 से जो छोटा है इन दोनों में से वो लेंगे, और अगर मेजर बोलेगा तो थीटा इन दोनों थीटा में से, जैसे ये जो दो थीटा है सेंटर में, ये दो थीटा है हमारे पास सेंटर में, इसमें से हम वो थीटा लेंगे मेजर में जो 180 से बड़ा होगा. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ, और माइनर और मेजर फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दी थीटा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस सेक्टर. अबे यार, फिर से ओवल बन गया. अच्छा जी, नाउ दिस इज द सर्कल, लेट्स सपोज विद सेंटर O. नाउ radius, radius, this is the radius, this is the radius. The area which is enclosed, the area which is enclosed under the two radius, under the two radius and the arc length, इसके दरमियान में जो एरिया आ रहा है सारा, that is called sector. What is it called? That is called sector. The yellow one is the minor sector and the white one is the major sector. Both are called the sector. This one is said to be the minor sector, and identification of minor or major is same जैसे कि हमने इससे पहले हमने पढ़ा था, according to the angle, and this one is supposed to be a major sector. The definition of sector is the area. Sector is the area which is enclosed under the two radius and the arc length. दो radius और arc length में, ये दो radius और ये arc length, इनके दरमियान का जो एरिया होगा दैट विल बी द सेक्टर. दो रेडियस और ये मेजर आर्क लेंथ, तो इन दोनों के दरमियान का जो एरिया होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, येलो भी एरिया ऑफ सेक्टर है और वाइट भी एरिया ऑफ सेक्टर है, बट डिफरेंस ये है कि येलो जो है माइनर सेक्टर है और जो वाइट वन है वो मेजर सेक्टर है. ओके, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ सेक्टर इज, बिकॉज इट्स एरिया, फॉर्मूला वही सेम है. वहां पे आर्क लेंथ था जो कि बाउंड्री थी, यहाँ पे एरिया है, तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ 2 पाई आर यू हैव टू राइट पाई आर स्क्वायर. So theta upon 360 into pi r square is the formula for finding out the area of sector. Either it's minor sector or it's major sector, doesn't matter. Minor और major सिर्फ थीटा पे इफेक्ट करेगा. थीटा अगर माइनर होगा तो यू हैव टू राइट थीटा विच इज लेसर देन 180, और अगर मेजर होगा तो आपने इन दोनों एंगल में से थीटा वो लिखना है जो 180 से बड़ा हो. ओके, दिस इज अबाउट दी सेक्टर. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम. अबाउट, लेट्स लर्न अबाउट द सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे. शुक्र है पहली बार सही बना. दिस इज सेंटर O फॉर एग्जांपल. अच्छा जी, नाउ द एरिया विच आई एम शेडिंग, द एरिया विच इज enclosed under the chord and the arc length, that area, the yellow part, is said to be minor segment. Again,
the white one is said to be major segment. This is said to be minor segment क्योंकि ये हाफ से कम है, एंड दिस वन इज सेड टू बी द वाइट वन इज सेड टू बी मेजर सेगमेंट. अब यहाँ पे एंगल का तो कोई काम नहीं है, लेकिन आप लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे माइनर और मेजर सेगमेंट. लेट्स अच्छा जी, ये आपका अगर फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग टू फाइंड द माइनर सेगमेंट, तो आप लोग क्या करेंगे, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी. माइनर सेक्टर जो ओ ए बी है, आपने पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. देन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप येलो पार्ट का एरिया शेडेड माइनर सेगमेंट के लिए. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मींस ओ ए बी पूरा ये हिस्सा आपको मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक से, ये पूरा हिस्सा. दिस इज कॉल्ड सेक्टर. ये पूरा एरिया आपने निकल गया. अगर इस पूरे एरिया में से मैं ट्राइंगल जो अनशेडेड एरिया है वो माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, येलो सेगमेंट माने येलो एरिया जो है वो आपके पास बचेगा. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. अब ट्राइंगल ओ सेक्टर का तो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2. ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है. 1/2 ए बी साइन थीटा. ए बी क्या होंगे, ये जो इसके थीटा के एडजेसेंट साइड है, एक ए होगा और एक बी होगा. मतलब ये जो दो रेडियस हैं इसमें से एक ए होगा एक बी होगा, रेडियस दोनों सेम ही है. अगर रेडियस 10 है तो ए भी 10 है और बी भी 10 है. ओके, सो टू नॉट बी कंफ्यूज्ड कि भाई सेक्टर क्या होता है सेगमेंट क्या होता है, बिल्कुल आसान है. सेक्टर जो येलो एरिया है दैट इज कॉल्ड दी सेगमेंट. और जो हमारे पास ये जो क्लोज्ड है मैंने ब्लैक से शेड किया हुआ है, ब्लैक से आउटलाइन किया हुआ है, दैट इज सेड टू बी सेक्टर. ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज द एरिया विच इज इनक्लोज्ड अंडर द टू रेडियस एंड द आर्क लेंथ इज कॉल्ड सेक्टर. और सेगमेंट क्या होता है, एरिया विच इज इनक्लोज्ड अंडर द कोड एंड द आर्क लेंथ. दिस इज द कोड ए बी. ये लाइन जो है ये कोड ए बी है, कोड है, और ये लाइन जो है ये आपके पास आर्क लेंथ है. ओके, सो जो सेगमेंट होता है वो कोड और आर्क लेंथ के दरमियान का एरिया होता है, और जो सेक्टर होता है वो दो रेडियस और आर्क लेंथ के दरमियान का एरिया होता है. ओके, अब इसी तरह से अगर 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 मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का कहे, मेजर सेगमेंट का एरिया, तो इसके अंदर आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं. इसके अंदर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन थीटा. जो अनशेडेड है वो आपके पास है मेजर सेगमेंट का एरिया. तो इसमें एक ट्राइंगल आ रहा है और एक सेक्टर आ रहा है, एक सेक्टर आ रहा है. सेक्टर का एरिया क्या है, इससे पहले हमने सवाल में सीखा था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, तो ये अगर मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करने का बोलेगा तो ट्राइंगल, मेजर सेगमेंट के लिए आप ट्राइंगल प्लस ये सेक्टर दोनों को एरिया निकाल के प्लस कर लेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे लिंक करते हुए. दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके. अच्छा जी, calculate the total perimeter of the sector. Perimeter means, what is mean by perimeter? Perimeter means the outer boundary. The outer boundary of the sector, as I told you, the sector consisting of two radius and the arc length. This is the arc length. ठीक है, सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ टू रेडियस एंड द आर्क लेंथ. ये जो सेक्टर ऊपर बना हुआ है दिस इज द शेप ऑफ सेक्टर. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, तो रेडियस आ रहे हैं ओ ए ओ बी, दीज आर द टू रेडियस एंड दिस इज द आर्क लेंथ. तो इसका अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, तीनों चीज़ों को प्लस कर दोगे. रेडियस माने 6 + 6 प्लस आर्क लेंथ मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू 6. नाउ यू नीड टू पुट the values by yourself and then add them, you will get the answer. Then second part, area of sector. Area of sector, we have discussed the area of sector. The formula for finding out the area of sector is
theta over 360 into pi r square. This is the formula for finding out the area of sector. डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें. अच्छा जी. Now look at the interested part. They are asking to find the value of W, means the value of width. ठीक है. So let's check the question. Question में क्या कह रहा है ये? One edge of the rectangular piece of card passes through A and B. The other edge is tangent to the circle. रेक्टेंगल का जो एक एज है वो पासिस थ्रू ए एंड बी, मतलब सर्किल को कट करते हुए जा रहा है, और दूसरा एज जो है, दूसरा साइड जो है रेक्टेंगल का, वो सर्किल पे टेंजेंट है. माने 12 वाला जो साइड है ये टेंजेंट है, ये साइड सर्किल पे टेंजेंट है, माने एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है सर्किल पे, और ये जो है ये कट करते हुए जा रहा है. इसका मतलब है सर्किल कुछ इस तरह से था और ये बीच में से सर्किल को कट करता हुआ गया. अच्छा जी. सो हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो W के लिए फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है हमारे पास O से लेके इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास रेडियस है, और ये हिस्सा हमें नहीं पता. ठीक है. तो हमें जो W की वैल्यू है वो है x, फॉर एग्जांपल ये x है और प्लस r. तो W इज इक्वल्स टू x, r की वैल्यू 6 है. अब हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है. x फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पुट करेंगे, प्लस 6 करेंगे, वी विल गेट द आंसर. अच्छा जी. द एंगल एट अ पॉइंट देयर सम इज इक्वल टू 360. अगर ये 310 है तो ये एंगल होगा 50 डिग्री. तो मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ साइड पे. लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल. ये मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पे. अच्छा जी. अब इसके अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है. हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ये डिस्टेंस. ओ, गलत बन गया. हमें जो फाइंड आउट करना है वो है, सही बन जाना. ठीक, अभी भी सही नहीं बना, तो स्केल का इस्तेमाल बंद करते हैं. हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ये हिस्सा. दिस इज एक्स, ये हमने एक्स कंसीडर किया था. ओके. नाउ ये पूरा एंगल 50 था. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है 6 तो ये 6, ये 6. जब आइसोसेलेस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो 50 डिवाइड होगा दो हिस्सों में, 25 और 25. ठीक है. तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना है वो है ये. ठीक है. उसका ये वाला हिस्सा जो है ये 6 है, रेडियस है हमारे पास, और ये एक्स है, ये हमें फाइंड आउट करना. और एंगल जो हमारे पास गिवन है वो है 25 डिग्री. ठीक है. तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जहन में आने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के मुताबिक हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसमें कौन कौन से साइड्स गिवन है, लेट्स चेक. इसके अंदर गिवन है 90 का ऑपोजिट साइड. द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री सेड टू बी हाइपोटेन्यूज. एंड इसमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज एडजेसेंट टू गिवन एंगल. एडजेसेंट टू गिवन एंगल इज कॉल्ड बेस. तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आता है हमारे पास, वो आता है कॉस थीटा में. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो कॉस थीटा हमारे पास है 25 डिग्री. एंगल जो गिवन है वो 25 है. बेस हमें फाइंड आउट करना है एक्स, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 6. नाउ 6 इज डिवाइडिंग ओवर हियर, इट विल बी मल्टीप्लाई. तो जब हम 6 को कॉस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेट्स चेक. कैलकुलेट करते हैं इसको. पेपर 2 का क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेटर अलाउ है. 6 multiply by cos 25. Its answer will be 5.44. Its answer will be, the value of x is 5.44. Okay, so the value of w will be 5.44 plus 6. It will be 11.44 centimeter. ठीक है. So this is the answer for the C first part. Okay. Now look at the second part. Second part देखते हैं. Second part में examiner क्या पूछ रहा है. In the second part, examiner is asking that when the sector is cut out, sector को जब हमने निकाल दिया, the triangle AOB is retained, the rest of the rectangular piece of card shown shaded is discarded as a waste. मतलब ये जो हमारे पास ये जो हिस्सा है जो शेड हुआ हुआ है,
दिस विल बी यूज्ड एज अ वेस्ट, मींस डिस्कार्डेड, इसको खराब एज अ वेस्ट इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड दैट इज डिस्कार्डेड एज अ वेस्ट, जो आपने डिस्कार्ड किया है, जो शेडिड एरिया है, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज इवन दो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आसान सी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। डिस्कार्डेड इज अ वेस्ट, तो इसका मतलब है इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, वो एरिया ऊपर रखेंगे, माने शेडिड एरिया जो है वो डिस्कार्ड किया है, तो शेडिड एरिया के बारे में परसेंटेज मालूम करनी है, तो शेडिड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 100% तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द शेडिड एरिया। अब शेडिड एरिया कैसे निकलेगा भाई? शेडिड एरिया के अंदर क्या है? रेक्टेंगल में से एक सेक्टर और एक ट्राइंगल है। रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या है? एक रेक्टेंगल के अंदर एक सेक्टर है और एक ट्राइंगल है, तो टोटल एरिया है रेक्टेंगल। टोटल एरिया फाइंड आउट करके माइनस क्या क्या चीज़ें अनशेडिड है इसके अंदर, टोटल एरिया माइनस अनशेडिड एरिया। अनशेडिड में हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दीज आर द टू अनशेडिड एरिया जिसको हमने टोटल एरिया में से निकालना है। एक सेक्टर है जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये दिस इज कॉल्ड सेक्टर, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, ये हमने निकालना है, ये माइनस करना है। और दूसरा जो हिस्सा है वो है ट्राइंगल, जो मैं येलो से मैंने हाईलाइट किया है, और ये ट्राइंगल में पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कलर मैंने उल्टे बोल दिए, एनीवेज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं सेक्टर फाइंड माइनस करता हूँ। टोटल एरिया हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है हमारे पास 12 और विड्थ आई थी हमारे पास 11.44, ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा 12 इंटू डब्ल्यू, 11.44 आया था, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने निकालना है। थीटा हमारे पास कितना है? थीटा हमारे पास है सेक्टर का 310, इवन तो ऊपर वाले पार्ट में निकाला था लेकिन हमने ऊपर वाला पार्ट नहीं किया था। 310 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई मीन्स 3.142 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर, रेडियस जो है वो 6 है। ओके, तो मैं एक और एरिया जो है वो ट्राइंगल का है 1/2, वो भी निकाल लेता हूँ हाथ के हाथ। ए बी क्या है इसके अंदर? ट्राइंगल थीटा के जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो ए बी होते हैं। थीटा 50 है, इसके एडजेसेंट साइड है 2 रेडियस, माने 6 और 6, तो ए बी 6 है और बी भी 6 है। 1/2 ए बी साइन थीटा है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। फिर से यहाँ बना देता हूँ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास, ये इसका थीटा है 50 डिग्री, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। तो ए और बी क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा। एंगल के जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो ए और बी होते हैं, तो ए भी 6 है और बी भी 6 है, और थीटा जो है इस ट्राइंगल का वो 50 डिग्री है। तो आप लोगों ने क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल में वैल्यूज पुट करनी है ए बी और थीटा की, यू विल गेट द आंसर। अच्छा जी, 12 इंटू 11.44 चेक करते हैं। 12 इंटू 11.44, टोटल एरिया आया हमारे पास 137.28, 137.28, ये हमारे पास आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इन दोनों का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया निकलेगा 310 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई मीन्स 3.142, और पाई का आप सिंबल भी लगा सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स 6 स्क्वायर। ओके, तो सेक्टर का एरिया आया हमारे पास 97.4, 97.4। ट्राइंगल का एरिया आएगा हमारे पास 3 6 18, 6 3 18, 18 इंटू साइन 50, हमारे पास 13.79, 13.79 हमारे पास आया ट्राइंगल का एरिया। प्लस किया हमने इसके अंदर 97.4 हमारा आंसर आया 137.28 माइनस, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आया 111.19,
राउंड करके। तो 137 में से 137 माइनस 111 137.28 माइनस 111.19 हमारे पास आंसर आया 26.09 26.09। ये हमारे पास आया शेडिड एरिया। क्या आया ये हमारे पास? इट्स शेडिड एरिया। हमने टोटल एरिया में से ट्राइंगल और सेक्टर माइनस किया, टोटल एरिया था रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, उसमें से हमने सेक्टर का एरिया और ट्राइंगल का एरिया प्लस करके टोटल में से माइनस कर दिया, तो वी विल गेट द शेडिड एरिया। तो हमारे पास फॉर्मूला है शेडिड एरिया परसेंटेज का, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100%। तो शेडिड एरिया है हमारे पास 26.09, 26.09। टोटल एरिया हमारे पास आया था 12 इंटू 11.44 137.28 137.28 इंटू 100%। So let's check the answer. 26.09 divided by 26.09 divided by 137.28 137.28 into 100%। तो हमारा आंसर आया 19.005। So it will be 19%. It will be 19%, 19.0% और 19%। दिस इज द आंसर इन परसेंटेज कि वेस्ट की क्या परसेंटेज बनी। ओके, सो हमने जो सीखा अभी वो क्या क्या सीखा, हाउ टू फाइंड द आर्क लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेगमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, और इसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने की। सो दिस इज अबाउट दिस सर्किल। तो सर्किल के बारे में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जो कि मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वॉल्यूम के हवाले से होगी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट 3D शेप, वो सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।